So in the morning session, we have done near about the designing part. So move on the part, and after that we see the remaining section. Here, few things I have added or included in this, which I describe here. What the new part, which is different from morning session, what the component I have added. See, sometimes we need to scroll the this view or the total activity on the screen. Okay, like if I run this emulator, you can see this type of uh, scrolling here in the side of this on bar. You can see this is okay. So this functionality I have added, and why we are adding, because suppose you can not directly, you can see that here whenever you put the cursor in the edit text 1 or edit text 2, at that time this number or input numbers are reflected. Okay, like if I run again, then you clearly understand this. So your Gradle is building running. In the bottom you can easily see Gradle build running here, and again this is telling that terminated. ये कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, so we have to, yes, installing. Here you can see in the bottom installation and Gradle build running. Okay, so wait whether it is installing or not, otherwise it is saying that terminate. If I click this terminate, the complete section or the visual device will close. So wait some time, give some minute seconds, and see what happened after this section. Gradle building, what happened. सर टर्मिनेट कर दीजिए उसको। हाँ, वो मुझे पता है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टर्मिनेट करेंगे तो बंद हो जाएगा। हम आपको कह रहे हैं देखिए क्या होता है इस रिजल्ट का। टर्मिनेट नहीं करते हैं तो टर्मिनेट करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इट इज शोइंग दैट Gradle build running. चलो फिर से वही करना पड़ेगा हमें। सी, अब ये लॉन्च अब किया जब मैंने उसको टर्मिनेट किया। हाँ, तो अभी this screen you can see there is no number or full screen is before you. Okay, so complete display you can see, but at the time you enter here or you click the cursor, this number will display or this some portion of your activity screen, okay, is. Now what is the problem? You have to move it, or you want to move it up or down, or you want to some section which is required, like if you want to multiply, then you need to multiply button. So scrolling gives this functionality in the activity or your app. So I have added this scroll view for this functionality. Okay, so whatever part you want to move up or down, you can easily move. ठीक है ना? तो इसके लिए ये हमने स्क्रॉल व्यू का ऐड किया है। इसको भी देख लेते हैं इसमें करना कैसे है। सी, कॉमन में हम कॉमन प्ले
पैलेट्स में जाएंगे, कॉमन पैलेट में हमें यहाँ पे स्क्रॉल व्यू दिखेगा, ठीक है। और जब भी स्क्रॉल व्यू को हम मूव करके ले आएंगे, ठीक ना, तो वो अपने साथ साथ देखिए कि हम यहाँ पे लीनियर लेआउट के नीचे इसको रखना है, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली लीनियर लेआउट को अपने साथ मिला रहा है। ये देखिए स्क्रॉल व्यू है और इसके साथ में क्या आ रहा है अटैच में, लीनियर लेआउट, ठीक। तो ये जो पहले मैंने इसको यहाँ पे किया हुआ, इसमें भी ये लीनियर लेआउट अपने आप आया हुआ है, ठीक है ना। तो या तो इनिशियल स्टार्टिंग में आप कर लीजिए, या बाद में अगर आप इसको ले आएंगे एक सेक्शन को कवर करने के लिए, तो आपको याद रखना है कि हमें कहीं 2 टाइम्स लेआउट, लीनियर लेआउट या स्क्रॉलिंग ना आ जाए, ठीक है ना। कि आपने पहले लीनियर लेआउट बना रखा और फिर से स्क्रॉल व्यू लिया, तो लीनियर लेआउट 2 टाइम्स लीनियर लेआउट हो गया। ये थोड़ा सा मैं आपको मैनेज करना है, देखना है, अगर आपने पहले से इसमें व्यूज या कंपोनेंट्स फिट कर लिए हैं, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ओके। ये एक फंक्शनैलिटी हमने ऐड की है ताकि स्क्रॉलिंग हो सके, और बाकी का तो मैं मॉर्निंग में हो चुका था आई थिंक। हाँ, एक और चीज़ हमने इसमें ऐड की थी, ये जो बटन्स देख रहे हैं ये आपके कर्व में है, ये कॉर्नर पे देखिए थोड़े से, है ना। अगर आपको इसका स्क्रीन थोड़ी सी, ये यहाँ पे कॉर्नर्स कर्व में है, रेडियस इनकी दी हुई है, कुछ एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर नहीं है, ठीक है ना। तो ये कैसे करना है, ये आपको आपके प्रोजेक्ट के सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपका ड्रॉएबल जो है वहाँ पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके न्यू और अनड्रॉएबल रिसोर्स फाइल यहाँ पे क्लिक करना है, और कोई नेम दे देना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसमें जो ये बैकग्राउंड एडेड है इसी को हम डिलीट कर देते हैं, और उसके बाद इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे इसको डिलीट करेंगे तो ये बोलेगा जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है वहाँ से इसका लिंक जो है वो अपडेट करेगा, ठीक है ना। तो ये मैं इसलिए रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको एक बार दोबारा इसको जब करेंगे तो फिर से आपको समझ में आएगा, हाँ हमें ये करना था। बैकग्राउंड बटन्स पे ये बता रहा था, हमने इसको डिलीट कर दिया यहाँ से। अब देखिए इस सेक्शन में जा रहे हैं हम, ड्रॉएबल में, वहाँ पे न्यू से कहाँ गए, ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल। अगेन रिपीटिंग दिस सेम स्टेप्स, you have to right click on drawable, then new, then drawable resource file, यहाँ पे क्लिक किया, और फिर बैकग्राउंड, यहाँ बैकग्राउंड लिखा हुआ था, इससे आप नेम जो भी लिखेंगे, हमने पहले बैकग्राउंड यूज किया इसलिए इसको बैकग्राउंड लिख रहा है, ठीक है। तो बैकग्राउंड आपको एक एक्सेल फाइल बन जाएगी, ये देखिए बैकग्राउंड डॉट एक्सएमएल फाइल बन गई, ठीक है ना। तो जैसे ये बनेगा आपको करना क्या है, सेलेक्टर जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्टर को, और इसकी जगह लिख देना सेव, ठीक है। क्या करना है, सेव कर देना है इसको, ठीक है ना। सेलेक्टर को क्या करना है आपको, इस सेलेक्टर को आपको कंप्लीट करके और इसके बाद आपको इसको सेव बना देना, सेव लिख देना इसकी जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो जिस बैकग्राउंड को आप देना चाहते हैं या उसकी जो डिजाइनिंग करनी है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी बेसिकली सॉलिड, ग्रेडियंट, कॉर्नर साइज और पैडिंग स्ट्रोक करके ऑप्शंस हैं। तो सॉलिड में जो कलर्स आ रहे हैं हम देखते हैं क्या है। सॉलिड में आपका कलर ऑप्शन में आप सपोज आपने कलर या तो आप सेलेक्ट कर लीजिए गूगल से, या जो आपके कलर पिकर है तो फॉन्ट पिकर, कलर पिकर से आप वो कलर बना सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू ले ली, वो भी कलर में ही आएगा, सपोज ये है। तो देखिए राइट साइड में आपको उसका कलर दिख गया, किस तरह का कलर है। तो डिपेंड करेगा वैल्यू क्या है, और उस वैल्यू को आप लिखेंगे तो क्या आपका कलर बनेगा। अभी देखिए 656 में ये कलर आपका बन रहा है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेशन एंड व्हाट एक्चुअली विच टाइप ऑफ कलर यू वांट टू टेक, ओके। तो ये सारा कुछ डिजाइनिंग पार्ट में रहेगा, आप जिस तरह से आप डिजाइन करना चाहते हैं,
तो अभी हमने कोई कलर ले लेते हैं, सपोज FF6, ठीक है ना। तो ये कलर आ गया। अब इसके बाद इसके कॉर्नर, बेसिकली हमें क्या करना है, हमें कलर से ज़्यादा हमें कलर का तो नहीं लेना है, हमें लेना है कॉर्नर। कॉर्नर्स को राउंड करना है। हमारा टारगेट क्या है, कलर्स। कॉर्नर जो है उसका रेडियस, उसमें ऑप्शन आता है रेडियस, क्या रहेगा, रेडियस, ठीक है। तो रेडियस हर तरह से, साइड से, लेफ्ट राइट और टॉप राइट बॉटम, इस तरह से टॉप और बॉटम से आपको लेफ्ट और राइट साइड में रेडियस ले सकते हैं। लेकिन हम चारों एक साथ सेलेक्ट करें तो रेडियस आपको सपोज 12, ठीक है, 12 दिख लिया। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको चेंजेस देखने की, किस तरह का चेंज आएगी, कितना रेडियस होना चाहिए, उसके लिए आप पहले जो हमने सॉलिड का ले रखा था उस सॉलिड को, उस पर हमें इफेक्ट दिखेगा और हमें पता चलेगा कि हाँ कितना हम रेडियस चेंज करें। सपोज हमने कलर को ले लिया और उसमें हमने कोई भी कलर FF5 ले लिया, ठीक है, हैश लिखना है और उसके बाद ये कलर आ गया। अब क्या करना है, आपको इसके कॉर्नर देखने हैं कि कितना, ये देखिए बिल्कुल रेक्टेंगल है। अभी हम इसमें 40 dp रख रहे हैं, 40 dp बहुत, इसके कॉर्नर आपके कर्व्ड हो गए हैं, ये देखिए, और 80, ठीक है, और ज़्यादा कर्व्ड हो गए, ठीक है ना। लेकिन हम इसमें 20 dp रखेंगे, 20 dp, और कलर हमें वही रखना है, तो इसलिए हम इस कलर वाले पोर्शन बता देते हैं। ठीक, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और ये हमने चारों यहाँ से जो बटन्स थे इनको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद इसके बैकग्राउंड पे जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से भी जा सकते हैं, लिख सकते हैं बैकग्राउंड, या डायरेक्टली आपके एट्रीब्यूट में यहाँ पे गए और यहाँ पे आपको क्या करना है, बैकग्राउंड लिखना है। यहाँ ध्यान से देखिएगा इस साइड में, क्योंकि बहुत सारी विंडोज खुली हुई हैं, आपको लिखना है बैकग्राउंड, ठीक है। ये बैकग्राउंड है, थोड़ा सा इसको ओपन कर लें, एक्सपेंड कर लें, तो आपको थोड़ा और अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, बैकग्राउंड को फिर यहाँ हमने ओपन किया। इस साइड में देखिए, यहाँ पे क्लिक करने से, इसको क्लिक करेंगे तो आपका ये पी का रिसोर्स मिल जाएगा। अब इसमें आपने जो भी बना रखा है XML वगैरह वो आप ले सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बैकग्राउंड को कोई कलर नहीं दिया था, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी रेक्टेंगुलर थी। अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये देखिए चेंज आया, आपका रेक्टेंगुलर का कॉर्नर जो है का शेप चेंज हुआ। पहले भी कर रखा था कुछ, लेकिन वैल्यू में चेंज आया, इसलिए थोड़ा चेंज दिखेगा पहले से। ये हमने दो चीज़ें इसमें ऐड कर दी थी डिज़ाइनिंग में। आप इसके अकॉर्डिंग और भी सर्च करके कि किस तरह का होना चाहिए, बहुत सारे व्यूज़ होते हैं आपके, जो ये सॉलिड है और ग्रेडियंट है और जो इसके कॉर्नर हैं के रेडियस चेंज करके। और ग्रेडियंट जब आप यूज़ करेंगे तो ग्रेडियंट क्या करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन आपका स्टार्टिंग और एंडिंग, यानी बीच में कैसा होगा। अगर बटन है तो बटन के पूरे पोर्शन में से स्टार्टिंग, लेफ्ट साइड, राइट साइड, कई कॉम्बिनेशन आप पूरा उस एक बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं एक एक बटन पे या एक एक व्यू पे, कंपोनेंट पे, ठीक है ना। अभी क्या है, अभी हमने तो डायरेक्ट ही कलर ले लिया, अभी इसी में ये चेंजेस करके लोग इसको और बहुत रेडियंट बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। चलिए ठीक है, फिर अपना टारगेट तो अभी क्या है, अभी इसको फंक्शनिंग देखनी है, हमें एक्शन परफॉर्म कराना है, ठीक है ना। तो इतना काम कर लिया है। मॉर्निंग से जो थी उसमें दो चीज़ें ऐड की थी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्क्रॉल व्यू स्क्रॉलिंग के लिए, और साथ में आपने क्या किया है, एक अपने बैकग्राउंड XML फाइल बना के उसमें कलर को या उसके रेडियंट और प्रॉपर्टीज़ को सेट किया हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़ और मैं बता दूँ, आपका जो वैल्यूज सेक्शन है, यहाँ पे देखेंगे आपके रिसोर्स में वैल्यूज सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे कलर डॉट XML आ रहा है, ठीक है, ऑलरेडी है आपके पास। तो यहाँ पे जाके आप कलर को ऐड करा सकते हैं, किसी भी कलर को बना के और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे ओपन किया तो ये ऑलरेडी जो आपके डिफ़ॉल्ट में आ रहे हैं वो यहाँ पे कलर है,
ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो कलर को यहाँ पे कोई नया बना के कॉम्बिनेशन कैसे होगा, कॉम्बिनेशन आपका ऐसे होगा कि यहाँ पे कोई हैश करके और ठीक है, ये मैं आपको 6FF इस तरह के आप देख सकते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ पे दिखता भी जा रहा है ये कलर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे रखा तो ये कलर बन गया, यहाँ पे करेंगे तो ये हो गया, इधर इसको सेलेक्ट करेंगे और या फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप इसको जो कलर आप सेट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप मूवमेंट लेके या सेलेक्ट करके जो अच्छा लगे, जिस तरह का आपका गुड लुकिंग सिचुएशन बना सकते हैं, बनाइए। ठीक है, तो ये कलर ऐड हो गया, इसका नेम दे दीजिए, सपोज कोई भी नेम देंगे हम, ठीक है, RT ठीक है ना। अब इसको आप डिक्शनरी में सेव करके, मान लीजिए हमने राइट क्लिक किया या फिर यहीं पे क्लिक किया और इसको कंटेक्स्ट यहाँ पे सेव RTBN डिक्शनरी, जैसे सेव करेंगे तो कहीं भी इसको हम इस कलर को कॉल कर सकते हैं। तो ये कलर का कॉम्बिनेशन भी हम ऐड कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे ऐड नहीं करने जा रहे। तो ये हो गया कलर के लिए। तो जो डिज़ाइनिंग का पार्ट है इसमें कुछ ना कुछ हर बार सीखने को मिलता है। तो अभी की क्लास में आपने स्क्रॉल व्यू और साथ में जो ये कर्व्स या फिर रेडियस जो देनी है, कॉर्नर पे कैसा होना चाहिए, वो आपने यहाँ पे चेंज किया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हमारा नॉर्मल, मैंने कहा था कि वी विल स्टार्ट बाय डूइंग सम एक्शंस एंड दीज एक्शंस विल बी वेरी easy. Like what task we want to perform? We want to add, multiply, subtract and divide. So it is very easy, just like plus, minus, into and division. But before that, the normal processing that is always required, we have to perform. Okay, so in our case, if we see we have this edit text 1, edit text 2, then text view and button 1, 2, 3, 4, and each and every component has their ID. Like if you click here and see from coding part or from attribute, you will easily uh, check that the ID is BTN ADD for this button. Okay, respectively for others it is BTN subtract, BTN multiply, BTN, like that. Okay, so what now our task is? Our task is to just initialize these things. Okay, तो क्लास में जाएंगे, ये क्लास है, क्लास में हमने क्या किया, सबसे पहले हमको क्या है, इनिशियलाइज करना, एडिट टेक्स्ट और इसका नाम रख लेते हैं कुछ भी हम, हमारे पास दो एडिट टेक्स्ट हैं, पहले के लिए फर्स्ट नंबर FIRST फर्स्ट नंबर, ओके फर्स्ट नंबर, सेकंड के लिए सेकंड नंबर, क्लियर। तो ये लिख लिया, उसके बाद टेक्स्ट व्यू हमारे पास, टेक्स्ट व्यू और इसमें हमने कहा था हम कुछ इस पे आंसर देखेंगे तो ANS करके लिख लिया टेक्स्ट व्यू, ठीक है, ये लिख लिया। अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये कह रहा है कि अल्ट इंटर करो, तो आप याद कर लीजिएगा अल्ट इंटर आपका शॉर्ट की है, जो कि आपने देखा ये आपका एडिट टेक्स्ट अपने आप आ गया, ठीक है, लेकिन अभी टेक्स्ट भी नहीं आया, तो आपको करना क्या, अल्ट इंटर कर दीजिए, यहाँ पे रख के पॉइंटर रखिए और अल्ट इंटर कर दीजिए, तो अपने आप आपको टेक्स्ट व्यू देखिए इंपोर्ट हो गया, ठीक है, इंपोर्ट हो गया। अब आपने एडिट टेक्स्ट पोर्शन के लिए दो एडिट टेक्स्ट थे, तो हमने दोनों की नेमिंग कर दी, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, फर्स्ट एडिट टेक्स्ट फर्स्ट नंबर एंड फॉर सेकंड एडिट टेक्स्ट वी विल टेक सेकंड नंबर, ऐसा करके इनका हमने वेरिएबल ले लिया। अभी टेक्स्ट व्यू एक ही था हमारे पास, तो उसका भी नेमिंग कर लिया, एक वेरिएबल ले लिया। अब बटन्स कितने हैं हमारे पास, 4 बटन्स हैं, सो बटन देखिए जैसे आपने किया, एज this is at this current time we can see instantly क्या हुआ, जैसे आपने बटन यहाँ पे लिखा
और आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो गया बटन। नहीं हो रहा तो आपको करना क्या है, आपको अल्ट इंटर प्रेस करना है, ठीक है, अल्ट इंटर प्रेस करना है। तो अभी बटन का भी इंपोर्ट हो गया है। अभी बटन कौन कौन से हैं आपके पास, 4 बटन्स हैं। आपको नेमिंग उनका वेरिएबल देना है। आप पहले ऐड, क्योंकि आपको ऐड बनाना है, आपको सब्ट्रैक्ट है, आप पूरा भी लिख सकते हैं, कंप्लीट नेम भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई हमने पूरा नहीं लिखा, हम जस्ट एमयूएल लिख रहे हैं, और डीआईवी डिवाइड, ठीक है ना। तो हमने इनके वेरिएबल्स ले लिए हैं और इन्हीं में हम जो भी वैल्यू आएगी वो स्टोर करेंगे। अब इसके बाद क्या होगी, इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा टास्क क्या है, दूसरा मेन टास्क ये है कि इन वेरिएबल्स का इन एक्चुअल बटन टेक्स्ट और एडिट टेक्स्ट के साथ जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके साथ एक्चुअली कंबाइंड हो, यानी उनके लिंक हो जाए। तो हमने जो वेरिएबल लिया था, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑन क्रिएट मेथड के बाद ये स्टार्ट होगा। तो ऑन क्रिएट मेथड के बाद क्या करना है हमको, हमको करना ये है कि सबसे पहले, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इस काम को करने से पहले, अभी हम जब इसको रन करा रहे हैं अपने वर्चुअल डिवाइस पे देखेंगे, तो हमारे पास एक यहाँ पे देखिए ये है ना, कुछ डेमो लिख के आ रहा है। डेमो हमारा क्या है, डेमो हमारे प्रोजेक्ट का नाम हमने डेमो ले रखा था, ठीक है ना, ये डेमो, तो डेमो लिख के आ रहा है, ठीक है ना। तो जो ये चीज़ है ये एक्चुअली ठीक है, कई बार नहीं सही लगती है, तो इसको करा कैसे जाए, इसको हटाया कैसे जाए, क्योंकि ये इरिटेट करेगा। ये सपोर्टिंग एक्शन बार है हमारा, ठीक है। तो एक्शन बार ये जो है इसको हम कैसे करेंगे, इसको हटाना है हमें। तो सबसे पहले हम इसको एक्शन पे ही, जब क्रिएट हो रहा है, जब हमारा मेथड क्रिएट कॉल हो रहा है, वहाँ पे क्या करेंगे, गेट और सपोर्ट एक्शन, देखिए अपने आप आ गया सबसे टॉप पे, सपोर्ट ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, सपोर्ट एक्शन बार, ठीक है, गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट हाइड, ठीक है। ये क्यों क्रॉस क्यों दिखा रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसको भाई, गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट, और इसको क्या करना है, हाइड करना है, हाइड करना है। हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू हाइड दिस। तो अभी मैंने जैसे इतनी लाइन लिखी, गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट हाइड, अब इसको रन करके देखते हैं। और सिमुलेटर पे अपना जो विजुअल एमुलेटर है, जो विजुअल डिवाइस है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, डेमो है अपना लिखा हुआ, ये हमें हटाना है, ये इस बार को हटाना है, हमें एक्शन बार को हटाना है यहाँ से। तो अभी ये लोड हो रहा है, सी व्हाट हैपेंड, हाइड होता है कि नहीं, तो ये हाइड हो गया, ठीक है ना। तो एक लाइन से देखिए आपका ये सपोर्ट एक्शन बार को हमने हाइड कर दिया, ठीक है। जो यहाँ पे भारतीय टाइटल टाइप से दिख रहा था वो हमने हाइड कर लिया है, तो ये और अच्छा व्यू आ रहा है। तो एक तो इसको हमने जैसे मेथड क्रिएट होगा ये कॉल होगा, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, हमें ये भी देखना है कि जो अपना काम था कि हमने एडिट ये सब टेक्स्ट वगैरह लिए थे, इनको अब कैसे लिंक करना है, कैसे लिंक करना है। तो लिंक करते हैं सबसे पहले, हमारा जो एडिट टेक्स्ट फर्स्ट आपका नंबर है वो हमको लिंक करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर इक्वल टू, क्लियर, इस वेरिएबल में क्या करना है, हमें पहले वाले एडिट टेक्स्ट, जो फर्स्ट एडिट टेक्स्ट है उसका नंबर जो भी उसमें एंट्री हो यहाँ पे आए, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेफरेंस देते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी लेना है, हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी एप्लीकेशन एक्टिविटी और इन कोड यू हैव टू यूज दिस विदाउट यूजिंग, बिकॉज ये लिंक है, ये वहाँ जो मेन आपका आईडी बटन होगा उसको कनेक्ट करेगा आपके वेरिएबल से, और इसके बिना आपका काम होगा नहीं। इसलिए फाइंड व्यू बाय आईडी और उसके बाद आर डॉट आईडी डॉट, इतना तो फिक्स है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी, और आर कैपिटल रहेगा, आर कैपिटल रहेगा, उसके बाद आईडी स्मॉल रहेगा। फाइंड व्यू बाय आईडी,
r.id। अब क्या करना है, किससे कनेक्ट करना है, हमें पहले वाले बटन जो एडिट टेक्स्ट था और उसका नाम क्या था, उसका नाम था ईटी फर्स्ट नंबर, ईटी फर्स्ट नंबर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं यही था कि नहीं। ईटी फर्स्ट नंबर चेक करते हैं, हमारा ये एडिट टेक्स्ट है। एडिट टेक्स्ट का देखिए यहाँ पे डायरेक्टली हम आईडी यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये रही, देखिए ईटी फर्स्ट नंबर, ईटी फर्स्ट नंबर इसका आईडी है। ठीक है, तो इसको हमें आईडी से कनेक्ट कर देना है। तो हमारे कोड में गए हम और हमने लिख दिया ईटी फर्स्ट नंबर। अगर पहले से डिफाइन कर रखा है तो आपको जस्ट कुछ भी वर्क लेटर्स टाइप करने हैं। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, ईटी, तो आपके पास ईटी से जो भी इससे रिलेटेड ये दिख रहा था, ईटी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर आ गया, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर। ठीक है, इंटर कर दिया। अब आते हैं सेकंड, हमारा वेरिएबल क्या है, सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर वेरिएबल में हमें, और ये भी आपने लिख रखा है कहाँ, सॉरी, यहाँ पे ये भी हमने डिफाइन कर इनिशियलाइज कर रखा है। तो सेकेंड नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और आपको क्या रखना है, फाइंड व्यू बाई आईडी, फाइंड व्यू बाई आईडी। क्लियर रखिएगा कि फाइंड व्यू बाई आईडी याद रखिएगा, हमेशा रखना कैपिटल आर डॉट आईडी उसके बाद होगा और फिर डॉट लगाइए। डॉट जैसे लगाएंगे आपको पता है आपको क्या करना है, आपको दूसरे वाले एडिट टेक्स्ट का आईडी देना है और उसका आईडी क्या है, ईटी सेकेंड नंबर, ईटी सेकेंड नंबर। ठीक है, सेमीकोलन आ गया ये। तो अभी तक आपने एडिट टेक्स्ट जो दोनों थे उनको आपने लिंक कर दिया है वेरिएबल के साथ। ठीक है, तरीका क्या है, यू यूज फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड, जिसके अंदर r.id और उसके बाद डॉट आईडी। बेसिकली आईडी कौन सी है, ईटी फर्स्ट नंबर हियर, एंड इन सेकंड केस एडिट टेक्स्ट 2, फॉर एडिट टेक्स्ट 2 आईडी इज ईटी सेकंड नंबर। हमने कर लिया। अब तीसरा जो पार्ट है, कंपोनेंट है, दैट इज टेक्स्ट व्यू। और उसके लिए हमने वेरिएबल ले रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो वेरिएबल है ये तीसरा वेरिएबल tvans, और बाय चांस इसको हमने इसी नाम से आईडी भी दे रखा है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइंड व्यू बाय आईडी आपको करना है और उसके बाद कैपिटल आर, फिर आईडी, फिर डॉट, और फिर आपको ये देखिए आईडी अपने आप आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर का वेरिएबल आपने जो ले रखा है और जो आईडी है वो बाय चांस सेम है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सेम ही रखनी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ क्या रखा है, इसको एडिट टेक्स्ट में, सॉरी ये तो टेक्स्ट व्यू है अपना, टेक्स्ट व्यू कहाँ है, ये रहा, इसकी आईडी क्या है, tvns। क्लियर, तो tvns हमने आईडी दे रखी थी और हमने यहाँ पे वेरिएबल नेम भी tvns दे रखा है, तो इससे भी दिक्कत नहीं है। आपने कोड सही करना है। कोड का आपका लिंक कैसे कराएंगे, लिंक कराने का तरीका है फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id, r आपका कैपिटल में होना चाहिए। इसके बाद आपके 4 बटन्स हैं, चारों बटनों को भी फाइंड व्यू बाय आईडी से लिंक कराना है। ठीक है ना, तो बटन के नेम आपने दे रखे हैं ऐड इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। ठीक, कैसे करना है, कैपिटल आर आईडी डॉट, और यहाँ पे आपको बटन ऐड, आपने आईडी दे रखी है बटन ऐड, तो आपने आईडी ले ली बटन ऐड। आपको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id, उसके बाद आपको डॉट करके फिर सब्ट्रैक्ट, SUB नाम से लिया हुआ है सब्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, मुझे लग रहा है ये स्क्रीन सही से दिख रही है, ऐसा तो नहीं कि ये छोटे छोटे इसमें दिख रहा हो। क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? रिस्पॉन्स भी करते जाए ताकि मुझे पता रहे। ओके, ठीक है, तो वापस आते हैं मेरी स्क्रीन पे। अगला टास्क क्या होगा, सेम, हमें जल्दी से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई के लिए MUL लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट,
और आपको बटन कैसा देना है, मल्टीप्लाई का बटन देना है। ये मल्टीप्लाई हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, लास्ट है डिवाइड। डिवाइड के लिए आपको सिंपली फाइंड व्यू बाई आईडी, देखिए कितना इंपॉर्टेंट, बिना फाइंड व्यू बाई आईडी के आप लिंक नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, और मैक्सिमम डिवाइड पे ये डिवाइड आईडी आ गई। फोर्थ बटन का ना जो आईडी था वो BTN DIV था, हमने उसको भी लिख लिया। तो ये आपने इनिशियलाइज करने के बाद इनको लिंक कर दिया है। अब टास्क आता है सिंपली, ये तो हमारा काम हो गया सिर्फ लिंकिंग का, कि जो भी यहाँ पे टेक्स्ट पे, बटन पे, एडिट टेक्स्ट पे काम होगा वो इन वेरिएबल्स के साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब करना क्या है, अब इसमें पहला फंक्शन या जो वर्क है वो क्रिएट कराते हैं। हम क्या करते हैं, ऐड। एडिशन के लिए क्या करना है, ऐड डॉट। जब ऐड बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा, तो हम क्लिक जब करेंगे तो क्लिक करने के लिए क्या होता है, क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, सेट ऑन क्लिक लिसनर को इसके साथ ऐड करेंगे, ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। क्लिक होगा तो क्या होगा, सेट ऑन क्लिक लिसनर। उसके बाद NUV लिखिए, वैल्यू लिखिए, वी लिखेंगे अपने आप आने लगेगा वैल्यू। ठीक है, न्यू, यहाँ पे आते हैं न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे कंप्लीट मेथड ऑन क्लिक आपका लिख के आ जाएगा। ठीक है ना, इसको एक बार रिपीट करके फिर से देखते हैं, बहुत इजी है। करना क्या है, जिस बटन पे हमें काम करना है, जिस पे उसका रिस्पांस देखना है कि हम व्हेनेवर वी आर गोइंग टू प्रेस व्हाट विल हैपन, सपोज ऐड बटन, जो कि एक्चुअली में BTN ऐड है, और उस पे जब हम सेट ऑन क्लिक लिसनर करेंगे, ठीक है, और न्यू लिखेंगे, व्यू लिखेंगे अपने आप, उसके बाद ये मेथड जो आपका है वो आ जाएगा व्यू ऑन क्लिक लिसनर, और उसके मेथड, उसके अंदर क्या मेथड होगा, ऑन क्लिक। ठीक है ना, यानी जब इस पे क्लिक होगा तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो इसमें हम क्रिएट करेंगे, तो बनाते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ और वेरिएबल्स ले लिए, सपोज इंटीजर लेने हैं। इंटीजर में हमने क्या ले लिया, पहले फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, और आंसर को ANS में लिख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में फर्स्ट वैल्यू, सेकंड में वैल्यू सेकंड की, और आंसर में आंसर लिख लेंगे। तो ये 3 वेरिएबल हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप डिफाइन किए हैं। अब अगला काम क्या है, हमें फर्स्ट में कौन सी वैल्यू आएगी ये देखना है। वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इंटीजर, कैपिटल I लिखिए इंटीजर आएगा, तो डॉट लिखिए पार्स इंट। ठीक है, और फिर क्या करना है इसके बाद, इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो नंबर था क्या था वो लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपको कनेक्ट कर देना है, ये आपको करना पड़ेगा। तो ET, और एक मिनट, यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। ये देखिए ये कनेक्टेड किससे, फर्स्ट नंबर से, ये लाइन। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट एडिट टेक्स्ट में एंट्री होगी वो कहाँ पे होगा, फर्स्ट नंबर में होगा। तो फर्स्ट नंबर डॉट, इस पे क्या होगा, गेट टेक्स्ट करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट क्लियर करेंगे और उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमें फर्स्ट करना है कि जो भी उस एडिट टेक्स्ट में एंट्री होगी वो हमें फर्स्ट में आ जाए। तो इंटीजर टाइप में ले रहे हैं, तो इंट इंटीजर कैपिटल में डॉट पार्सिंग, पार्सिंग करेगा उसमें, और जो नंबर है उसको टेक्स्ट मेथड के बाद टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करेंगे। अब क्या करना है, सेकंड के लिए हमारा नंबर के जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया इस मेथड में वो सेकंड है, यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ, और इसमें करना क्या, इंटीजर कैपिटल I इंटीजर डॉट पार्स इंट, इसके बाद ये हमारा सेकंड नंबर जो ये एक्चुअली ID से रिलेटेड है, ET सेकंड नंबर, तो हमारा सेकंड नंबर आपके पास जैसे लिखेंगे SC सेकंड नंबर आएगा, डॉट गेट टेक्स्ट मेथड देन टू स्ट्रिंग, ये कर लेना है। ठीक है ना, ये तो आपको करना ही हर केस में, गेट टेक्स्ट और टू स्ट्रिंग आपको कर लेना है। और जो ID है, ID के साथ चूंकि ID लिंक्ड है आपके फर्स्ट नंबर, ET फर्स्ट नंबर के साथ, ET सेकंड नंबर के साथ, तो हमने वही नेम यहाँ पे यूज किए हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। ठीक है,
तो अब फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल में वैल्यूज आ जाएंगी जो वहाँ इंटर की जाएंगी। जो आप इंटर करेंगे वो गेट टेक्स्ट होंगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, उसके बाद इंटीजर में पास होएगा। अब ये दोनों वैल्यू आ गई तो आंसर वेरिएबल में आप क्या करेंगे, फर्स्ट और, क्योंकि ऐड करना है तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, सेकेंड। ठीक, इनको कर लिया आपने, क्लियर। ये आपने आंसर कहाँ पे आ गया, आंसर आ गया एएनएस में, एएनएस में आ गया। इसको दिखाना कहाँ पे, टीवी एएनएस, टीवी एएनएस, ये आपका यहाँ पे इसको दिखाना है, जो आपका टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू में दिखाना है। ठीक है, क्या दिखाना है आपको, क्या दिखाना है आपको, सेट टेक्स्ट सेट करना है। यहाँ पे क्या सेट करना है, आंसर इज ये तो आपका कंकेनेट करेंगे, एएनएस, सॉरी आंसर है एएनएस, ठीक है। तो आपने टीवी पे सेट टेक्स्ट मेथड का यूज करके जो आपका एडिट सॉरी टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू क्या है, टीवी एएनएस, वहां पे आपने सेट कर दिया, ठीक है। तो आपने ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, फर्स्ट जो एंट्री करेंगे पहले एडिट टेक्स्ट में वो फर्स्ट में जाएगा, जो सेकंड एडिट टेक्स्ट में एंट्री करेंगे उस सेक्शन में वो सेकंड में जाएगा, फर्स्ट और सेकंड एडिशन हो जाएगा, और फिर वो जो आपका टेक्स्ट व्यू है वहां पे शो हो जाएगा। एक बार रन करते हैं, देखते हैं रिस्पॉन्स। पहले टर्मिनेट हो गया, अब इंस्टॉल हो रहा है, देखते हैं। लॉन्च एक्टिविटी, ये सब नीचे दिखते रहता है, लॉन्च सक्सीडेड और ये सारी एक्टिविटी होती रहती है। अब आपने जैसे यहाँ पे एंट्री की, आप देखो यहाँ पे ये नंबर्स आ गए एंट्री के लिए, लेकिन बाकी चीजें इसमें हाइड हो गई, प्लस माइनस के बाद इनटू और डिवीजन हाइड है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको माउस के थ्रू वो स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपने स्क्रॉल व्यू अप्लाई कर रखा है, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, आपको फर्स्ट नंबर देना है, आपको 10 सपोज 10 और 5 आपने दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। तो प्लस काम कर रहा है, लेकिन इसमें माइनस काम नहीं कर रहा है, इंटू काम नहीं कर रहा है, प्लस कर रहा है, इंटू और माइनस काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपका कोड केवल प्लस पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे चेंज कर दीजिए, 20 कर दीजिए, 20 और प्लस करिए 25। एक चीज़ और है, यहाँ पे जो आपने वैल्यूज इंटर की हैं एडिशन करने के बाद भी ये वो बनी हुई है, ये यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, यहाँ से क्लियर नहीं हो रही है, तो आप ये क्लियर भी कर सकते हो, वो भी करके देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम हर एक बटन पे उनका कोड सिंपली कर देते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, अब तो एक बार लिख गया है, करना सिर्फ हमें ये है कि कॉपी पेस्ट करके उनको लिख देना। जैसे यहाँ पे ऐड किया कॉपी, ऐसे पहले हम इसको क्लियर का एक जो कॉन्सेप्ट एक पे लगाते हैं, ताकि कॉपी पेस्ट करने में हमें दिक्कत नहीं आए, है ना। तो वो भी कर सकते हैं, या सिंपली पहले हम अपना काम कर लेते हैं। क्या करना था, तो क्लियर हमको किसको करना है, जो पहला है फर्स्ट नंबर, या FIRST फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे क्या करना है, इसको गेट टेक्स्ट करना है, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट जो गेट होगा उसको क्या कर देना, डॉट क्लियर, ठीक है। हाँ, इसी तरह से सेकेंड नंबर में जो भी है उसको हम जो भी एंट्री वहाँ पे होगी, गेट टेक्स्ट जो भी होगा उसको हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं वर्क सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, है ना। तो ये तो टर्मिनेट है, करने दो। अब ये नीचे देखिए, नीचे जरूर देखना जरूरी है, इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल देखिए नीचे, यहाँ पे इंस्टॉल दिखा रहा है, और अभी इसमें कोई चेंज नहीं है, इसको भी क्लिक कर लीजिए। अब देखिए लॉन्च्ड सक्सीडेड, लॉन्च हो गया। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 10 और 2 और उसके बाद प्लस करेंगे। अब देखिए प्लस का आंसर आया, और साथ में देखिए दोनों यहाँ पे वैल्यूज हट गई, क्लियर हो गई, ठीक है ना। फिर से आप लिख सकते हैं 52 2 एडिशन करेंगे यानी प्लस, और यहाँ पे 52 आ गया आंसर, और ये दोनों वैल्यूज हट गई,
तो ये क्लियर करने का नतीजा है। आपने जो भी फर्स्ट टेक्स्ट में लिया था फर्स्ट नंबर में उसको क्लियर कर दिया। ठीक है, सिंपली। तो ये कर सकते हैं। अभी क्या करना, सिंपली हमारा काम सारा का सारा हो गया। सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और अब पेस्ट कर देंगे। वन टाइम ये सब्ट्रैक्शन के लिए होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। तो 3 टाइम्स हमने पेस्ट कर दिया। अब सिर्फ चेंज क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब SUB हमने लिया था वहाँ पे, तो SUB। और साथ में क्या करना है, यहाँ पे प्लस की जगह आपको लिखना है माइनस, सिंपल। और इसका आंसर क्या है, क्लियर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, थर्ड सेक्शन इज फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने इसे मल्टीप्लिकेशन एनुअल के नाम से लिया था, उसे यूज किया। और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको भी पता है, सिंपली इंटू कर देंगे, तो हमने इंटू कर दिया। उसके बाद फोर्थ है डिवीजन। फॉर डिवीजन पर्पस DIV we have taken, so name we have taken TIV and for division। और ये बहुत सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे एक्शन परफॉर्म किया है। अब क्या करते हैं, रन कर लेते हैं। और रन करते वक्त नॉर्मल सी बात है, टर्मिनेशन के लिए पूछ रहा है, करने दो। नीचे आपका इंस्टॉलेशन यानी नेक्स्ट इंस्टॉलेशन रेडी। और इंस्टॉलेशन के साथ ही आपका क्या होगा, यहाँ पे लॉन्च एक्टिविटी, लॉन्च सक्सीडेड, और ये लॉन्च हो गया। ठीक है ना। और आप चाहें तो इसको क्लिक करेंगे और 15/3 आप डिवाइड करना चाहते हैं, डिवाइड कर दीजिए। 15/3 ये नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेटर का जो अपना वर्क है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 12/4 या इंटू कर लेते हैं। ठीक है, 4 × 12 48। तो सिंपल एक्शंस प्लस माइनस इंटू डिवीजन वी हैव क्रिएटेड। इस तरह से कोड कुछ ही लाइनों का है, लेकिन लिखते लिखते हमारा ये कोड सिर्फ नॉर्मली कोड देखा जाए तो ये 90 के करीब ये लाइन्स हैं इसमें। ठीक है, मेन पोर्शन क्या है आपके पास, जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको वेरिएबल इनिशियलाइज करना है क्लास में। ठीक है, वो किस लिए, ताकि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं जिन्हें व्यूज कहते हैं, जो व्यूज हैं उनके साथ इनका लिंक किया जा सके। तो ये तो हमें करना ही करना है। तो फॉर ईच एंड एवरी ऐप, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिजाइन एनी ऐप, so we have to link our components with the variables। तो हमने यहाँ पे लिंक कर दिया है। तरीका क्या है, यूज फाइंड व्यू बाई ID मेथड। फाइंड व्यू बाई ID, इसके अंदर r_id। ठीक है, और ID के डॉट के बाद वो कंपोनेंट्स के ID होंगे। ठीक है, इनके बाद लिंक होने के बाद हम, अगर हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक छोटा सा जो मेथड लिया वो ये है कि हमारा जो एक्शन बार आ रहा था, पर जो बार आ रहा था उसको हम लोगों ने हाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमने यहाँ पे सीखी और इसको यूज़ किया। इसके बाद अपना सिंपल, जब भी हम बटन प्रेस करेंगे तो क्या एक्शन होना चाहिए, तो क्लिक होने पे क्या होना चाहिए, तो हमारा ऑन क्लिक मेथड जो कि हमें मिलेगा सेट ऑन क्लिक लिस्नर में, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर के अंदर ऑन क्लिक मेथड। और किस पे परफॉर्म करना चाहिए, उस बटन या उस कंपोनेंट का आपने जो वेरिएबल सेट किया हुआ है आईडी के साथ। हमने यहाँ पे ऐड के लिए, बटन ऐड के लिए btn ऐड के लिए ऐड लिया हुआ है, तो ADD ऐड के साथ ही लिखा हुआ है। और कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ सेट ऑन क्लिक अपने आप आता जाएगा, इंटर करते जाएंगे, ऑन क्लिक आएगा, ऑन क्लिक के अंदर यानी यहाँ पे हम उसकी बॉडी में ये अपना लॉजिक लिखना है। वेरी सिंपल लॉजिक। हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया है, और जो भी फर्स्ट नंबर में एंट्री हो रही थी, वट एवर वी आर गेटिंग आफ्टर टेकिंग or through keyboard, so through keyboard we are getting the value and that value is converted into a string and then integer passing। इसी तरह सेकंड नंबर, उसके बाद दोनों को ऐड करना है तो ऐड कर दिया, और उसका आंसर हमें कहाँ शो करना है, सेट कहाँ करना है, हमें सेट करना है जो टेक्स्ट व्यू है, और टेक्स्ट व्यू का नाम है TVNS।
वहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया है, जो भी वैल्यू आएगी वहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाए, वहाँ प्रिंट कर दें, ये प्रिंट की तरह यूज होगा। तो हमने यहाँ इनपुट के लिए ये मेथड यूज कर रहे हैं और आउटपुट के लिए सेट टेक्स्ट के लिए यूज कर रहे हैं। और ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि अगर वो वहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट था वहाँ पे नंबर्स रह जा रहे हैं आफ्टर ऑपरेशन, तो आफ्टर performing the operation we want to delete or remove the number, तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, डॉट क्लियर मेथड के साथ गेट टेक्स्ट, जो भी हमें उस नंबर उस फर्स्ट एडिट टेक्स्ट में है, जो भी गेट हुआ है उसको हम क्लियर कर देंगे, जो भी एंट्री हुई है उसको क्लियर कर देंगे आफ्टर ऑपरेशन। तो सबसे पहले ये हो जाएगा और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो क्लियर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस और मल्टीप्लिकेशन के लिए इनटू और डिवीजन के लिए डिवाइड का हमने मेथड या ऑपरेटर यूज कर लिया और उस ऑपरेटर की हेल्प से हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल था। और अगर आप इसको जो लोग पढ़े हैं पहले से उन्होंने देख रखा है उनके लिए तो बहुत इजी है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम भी कर रहे होंगे या 2-3 बार अभी उन्होंने स्टार्ट ही किया होगा एंड्रॉइड स्टूडियो में काम करना, तो उनके लिए भी बहुत इजी हो गया होगा, उन्हें भी लग रहा होगा कि हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी और सिंपल है अभी तक का ये एप्लीकेशन जो हमने बनाया है। ठीक है, तो ये आज का काम हुआ, हमने कैलकुलेटर डिजाइन कर लिया है कंप्लीटली, जिसमें हमारा 4 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो अभी बताइए, ये आपके पास आ रहा हूँ। बताइए बेटा। अटेंडेंस के लिए सेम लिंक का यूज कर लेंगे आप लोग, जो मॉर्निंग में दिया हुआ था उसी लिंक को यूज कर लेंगे, या आपको लिंक प्रोवाइड करना पड़ेगा? सर प्रोवाइड कर दीजिए एक बार। एक बार प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, ये आपको सेंड कर दिया है, आप सभी इस पे एंट्री कर दें, अटेंडेंस दे दें। और जिसका नेम इसमें नहीं है, एक्चुअली हमारे पास जो क्लास है, गूगल क्लास है अपनी, उसमें है अभी तक 1110, एक बच्चा और को एंट्री अभी किया हुआ, वैसे 109 के करीब था, ये किसी और ने अभी एंट्री किया इसका मतलब, तो 109 के करीब तो हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, जिसका भी नेम अभी नहीं आ रहा है आपका अटेंडेंस सीट पे, वो मुझे बताए, मैं उसको अलग से मेंशन कर लेता हूँ, बाकी सभी लोग गूगल क्लास से ऐड हो जाएं। तो मैं एक बार क्या करूँगा, गूगल क्लास के जितने भी एंट्रीज हैं उनको यहाँ पे यूज कर दूंगा। ठीक है, अच्छा अभी किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत ही टफ है, अभी तक का जो भी सेशन हुआ है उसमें कोड भी इतना बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है, कोई डिजाइनिंग में भी ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जहाँ बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऐसा कोई स्टेप हो। सो मुझे अभी आप बता सकते हैं कि इफ यू आर फाइंडिंग वेदर दिस प्रोसेस वट एवर वी प्रेजेंटेड और वी गो थ्रू दैट इज कॉम्प्लेक्स और सिंपल, इफ इट इज ओके देन हम इसी मूवमेंट में चलेंगे, इसी पेज से चलेंगे, अदरवाइज अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो बताए, ताकि वी विल मैनेज अकॉर्डिंग टू दैट। कैलकुलेटर बहुत इजी है, आज हमने बना लिया और आप भी बनाइए इसको, और अपने डिफरेंट डिफरेंट डिजाइनिंग में, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे इमेज हमने ऐड की थी, इमेज के बाद हमने जो लेआउट्स हैं डिफरेंट लेआउट्स आप उसमें अरेंज करिए, है ना। जैसे अगली अगली जो सेशन होगा उसमें मैं भी आपको दिखा दूं, हमने उसको क्या करना है, हमें वहाँ पे फूड
कैफे का यूज करना है, यहाँ पे हमने देखना है ये। तो ये डिजाइन थोड़ा सा मैंने भी हेल्प मेहनत की आप लोगों के लिए, डिजाइनिंग में कैसे थोड़ा हो सकता है, बट ठीक है, आप इससे अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। तो हमें तो जो जल्दी मिला वो उसमें अटैच कर दिया। बट इसमें क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स वी आर यूजिंग, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, रिलेटिव, देख रहे हैं ना। तो ये हम आगे आने वाली क्लासेस में इसको करेंगे, देखेंगे किस तरह से। और इवन अभी तो एक एक्टिविटी थी, अभी हमारे पास देखिए दूसरी एक्टिविटी भी आ गई, मतलब वन पेज एंड अनदर पेज, and maybe number of pages you have to move one from one page to another page now, because our target, like here, we have to do login and registration. So if you are have already account, then what you have to do, you just click on login and move on this page, the login page. Then enter your email id, password, and press button sign in, and you will be signed. And another the situation is first time user, you have to register. So for register we will the another page, and just normal information, name, phone, email, like that. I have draw this complete layout. So here three pages are uh, in design. We will move from one page to another page, and that's why this is multi-page, or we can say multi-activity. Simply one page is one activity. ठीक है, one activity contains number of views or components. These are views, the list or the edit text view, and the buttons, right? All are views, components. Clear? तो ये हम करके देखेंगे, इनको यूज करेंगे। बट अभी अगर आपको कोई संशय, कहीं कुछ पूछना है तो अभी पूछिए, तो उसका निवारण अभी का भी हो। हेलो सर। हाँ बेटा। सर मेरा नाम नहीं दिखा रहा सर अटेंडेंस उसमें। आज अभी आपने ज्वाइन किया हुआ है? जी सर, जी सर। हाँ, मैंने अभी आप इसीलिए बोल दिया था बेटा कि क्या कहा था कि अभी 109 थे, 110 हुए हैं। हाँ सर। और तो मैंने 109 को कॉपी करके आपके अटेंडेंस शीट में डाल दिया था, इसी वजह से अब वो उसमें एंट्री है नहीं। बट मैं क्या करता हूँ ना, आप अपना रोल नंबर और नेम यहाँ पे लिख दीजिए, इसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं इसको, क्या नाम है, राज शंकर या शंकर राज? शंकर राज। ठीक है, रोल नंबर क्या है? 705 सर, भेजते हैं। हाँ बेटा, ये मैं भी इसकी एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है। वो मैं अभी मैनुअली करूंगा इसको, बट आपका काम यही है कि अब तो आप कर चुके हैं वहाँ पे एंट्री, तो कोई दिक्कत नहीं है। गूगल क्लास में आपकी एंट्री हो चुकी है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। और किसी को प्रॉब्लम कोई? सर एक दूसरी क्वेरी थी थोड़ा सा। हाँ बताओ। सर एक्चुअली हम प्रोजेक्ट के लिए आपके पास आए थे, हाँ, जब हाँ, आप बिल्कुल। जाने वाले थे। जी हाँ, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे याद सर है। फॉर्म एक्चुअली आपका सिग्नेचर चाहिए था उसमें। एंड अच्छा। प्रेजेंट एक्चुअली सर प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट बना हुआ रखा हुआ है। हाँ, एक और बार प्रेजेंट कर प्रेजेंटेशन लो। देखो उसको क्या करते हैं ना, हमारा टारगेट क्या है, आपको प्रेजेंटेशन देना था। उस दिन भी आप लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन देते हैं। अभी भी हाँ एक कोई टाइम आप सेलेक्ट कर लीजिए, मैं रेडी हूँ, उस पर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सर, अगर आप कुछ, जिस टाइम पे फ्री हो, आप मुझे बता दीजिए। अगर आप रात को 9 बजे फ्री हैं तो मैं 9 बजे आपको प्रेजेंटेशन देने को हाँ तो तैयार आज कर लेते हैं ना। उसमें अगर कुछ ओके सर, कमियां, कुछ ठीक है। सजेशंस होगा तो मैं दे हाँ सर, दूंगा, अदरवाइज। सजेशंस। ओके। हाँ, अदरवाइज क्या कर लेंगे, उसका एक प्रेजेंटेशन आपका करा लेंगे। हाँ कोई ओके दिक्कत सर। नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है आपको वो सभी बच्चे नो सर, देख कोई प्रॉब्लम नहीं है है। ना। उससे क्या है, बच्चों और बाकी लोगों को बेनिफिट मिल जाए। कुछ चीजें तुमने बहुत अच्छी बनाई होंगी, हो सकता है यस हम क्लास लेते वक्त उन चीजों पे ना पहुंच पाए, लेकिन आपके प्रेजेंटेशन के थ्रू वो चीजें भी बच्चों के सामने आ जाएंगी, तो यस सबके लिए अच्छा हो जाएगा, ओके सर। है ना। तो एंड एक सर, बार क्योंकि आप अभी यहाँ पे हैं नहीं, तो आपका सिग्नेचर उस फॉर्म में मिल नहीं पाएगा, तो हम सर से ये बोल देंगे कि आप जब आएंगे तब सिग्नेचर दे देंगे, हम फॉर्म उन्हें सबमिट कर किन दें। सर को, कौन से सर को बोलना है? नीरज सर है शायद। ठीक है, मैं बात कर शायद लूंगा, नीरज सर है। और हाँ फिर कुछ ना कुछ इसका उपाय ढूंढ लिया जाएगा। ओके ठीक है। हाँ ठीक ओके सर। है। और किसी को कोई और प्रॉब्लम? ठीक है, फिर इसको एंड करते हैं। और अब थर्सडे को हमारा एज जो टाइमिंग होगी अपनी, उस टाइम पे क्लास ली जाएगी, ठीक है। उसको एंड करते हैं। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।